Good morning, the esteemed members of the coveted group as revival of Assi River. In fact, today it is indeed a bestowal of divine grace and a great privilege to be addressing such a esteemed erudite members of this group, because I am here at this Matri Sadan, the Sanctum Sanctorum, and most importantly, I am privileged to be sitting on the bank of Ganges, which is just flowing, beside this Matri Sadan, the Sanctum Sanctorum, and of course, just prostrating at the lotus feet of His Holiness Swami Sri Sivanand Saraswati Maharaj, the founder of Mati Sadan. I would like to say something, to address the members, just to giving a little introduction about what this great, Sanctum Sanctorum is all about, Mati Sadan is all about. Basically, it has been the citadel for the crusaders of Ganga River. Especially as entire nation and even the world, across the world, people know about the martyrdom of two of the glorious saints from this Sanctum Sanctorum. The first was Swami Nimbananji, who embraced martyrdom just for crusading for the mighty cause of Ganga River. In 2011, he embraced martyrdom. And then modern Bhagiratha, Professor G.D. Agrawal Sahab, too, following in the footsteps of Swami Nigmananji, because he, despite Professor Agrawal being far elder to Swami Nigmananji, he would often say that he took a lot of inspiration from Nigmananji and would to address him as elder brother. He just again, he went for unsun, for tapasya, and later he embraced martyrdom. Thereafter, we have other two valiant saints. Swami Atmabodhananji, one of the very young engineer who took to sainthood and sat for tapasya for 194 days, continuing with the great crusade of Professor G.D. Agrawal Sahab, Swami Gyan Sarup Sanandji and Swami Nigmananji. Swami Atmabodhananji, in fact, created a Guinness Books of World Record. But because, he is being a true saint, he doesn't have any worldly desire. He is not in the pursuit of all these things. And then we have another a very valiant saint, a young lady, Padmavati, who too went for tapasya, and you all know, the entire world knows how she has been, she was admitted in AIMS in a very bad, even in some subconscious stage, almost in the comatose state for so many days together. But by the divine grace, she recovered, and still she is recuperating. So basically, when we talk about Mati Sadan, we talk about tapasya, we talk about the contribution, the immense contribution for the sake of Mother Ganga. And Ganga happens to be the soul force of the nation. So long as Ganga is alive, India will be vibrant. And you all know the onslaught, the continuing onslaught against Ganga has almost wreaked havoc on Mother Ganga. And that is why Assi River, today we all have associated ourselves in the group for reviving of Assi River. So obviously, after revival of Assi, we all look forward to, reviving and restoring Mother Ganga to its pristine purity. As for the timing, we are seized with the matter of, Assi River, because we have to revive Assi River. Now, after having given you some introduction about what Mati Sadan and Ganga movement is all about, I would like to say that just now you will be coming across some sort of, a deliberation or discussion among three very intellectual people, like Dr. U.N. Rai Sahab, a very renowned scientist, Sri Bikeja, engineer from Mekon, and Professor Arif from Indian Institute of Technology. All these three people will be, engaging in some sort of conversation, some sort of discussion, deliberation on on Assi River, about its genesis, about its summum bonum, and about the entirety of the issues concerning Assi River. So, once you please, all of you, just listen to their deliberation, and I will again come with a conclusion. Thanks a lot to all the esteemed members. ठीक है। बात हो जाए। हाँ, ठीक वीडियो है। के लिए आरिफ साहब, ऐसा है कि 3 प्रोग्राम हैं, जूम, जी। वेबएक्स या गूगल हैंगआउट। ये तीनों में से कोई एक लोड करना होगा, तब हम लोग वीडियो से बात कर सकते हैं, और वो रिकॉर्ड भी होगा। हाँ। उसके लिए जो इनिशिएट करेगा, उसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। चलिए, अभी हम लोग, हाँ, अभी वो सब चीज बाद में सोच लेंगे। तो अभी हम लोग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग भी जो अगर रिकॉर्ड कर पाते हैं तो कर लीजिए। हाँ, रिकॉर्ड कर जाएगा। हाँ, और चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अस्सी नदी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
जी जी उसमें हम लोग उसके पास्ट को समझना है, प्रेजेंट सिचुएशन को समझना है, और फ्यूचर इसको में हम इसको कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। अभी सस्टेनेबिलिटी का क्या सिचुएशन है उसको समझना है, और पास्ट में ये इस रिवर का हिस्ट्री, कि ये रिवर कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, और इसमें इसमें जो आबादी थी वो किस तरह से धीरे धीरे पनपी, ये कब उनका उसकी उसका इतिहास। तो ये इस चीज के लिए क्या क्या इतिहास को समझने का क्या क्या टूल्स है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और उस तरह का चीज है। तो ये हमको अगर बता पाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग भी समझेंगे, और फिर करना तो आपको ही है, और कंसर्न लोगों के साथ हम लोग कोशिश करेंगे, आपको खुद ही जुड़िए, या हम लोग जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। तो आरिफ जी बताइए कि इसमें आप उस क्षेत्र का ऐतिहासिक आकलन कैसे कर पाएंगे। हाँ जी, देखिए हमारे पास जो हिस्टोरिकल एविडेंस है और नदी कितनी पुरानी है, कब ओरिजिन है, कहाँ से कहाँ तक ये है, इसकी महत्ता क्या है, और दूसरे इसके किनारे, नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास है। तो अस्सी नदी के किनारे इस पर कितनी सभ्यता विकसित हुई, हमें वेद पुराण स्मृतियों से होके फिर आगे जो हमारे ग्रंथ हैं उन तक आगे देखना पड़ेगा। और ये हमारे पास एविडेंस होंगे, जोग्राफिकल एविडेंस भी हमारे पास होंगे। फिर हम पूरा का पूरा मेडिवल इंडिया वगैरह देखेंगे। ट्रेवलर्स बनारस में बहुत यात्री आते रहे हैं, उन्होंने पहले भी इसका वर्णन किया धर्म ग्रंथों, और उससे ज्यादा हमें सहारा मिलेगा। फिर उस सभ्यता को पता करना बड़ा जरूरी है, इसके किनारे जो लोग बचे, विकसित हुए, ये सब पता चलेगा ये ग्रंथों से। एक चीज जो हम जो अभी तक समझे हैं, अस्सी नदी जो है वो अस्सी भागीरथी के पिताजी थे। हाँ। तो भागीरथी और अस्सी का एरिया का फॉर्मेशन, मतलब ये बनारस वाला जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो विंध्याचल वाला फॉर्मेशन है ये, मतलब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विंध्याचल जो है वो हिमालय से पुराना जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, और हिमालय जो है वो बहुत बाद में इस पूरे चीज को पुश करते हुए जो यूरेशिया की तरफ बढ़ा है, तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो गंगा जरूर ही बाद की नदी होगी, और अस्सी नदी पहले की होगी, और इसीलिए इसी नदी है। हाँ, तो ये और वरुणा जो है और ये अस्सी दोनों करीब करीब एक जगह से निकलने का कुछ प्रमाण बता रहे हैं आप ही लोग कि मिल भी रहा है। और मेरा जो रिवर का जो अध्ययन था उसके हिसाब से भी हमको लग रहा था कि जहां से जिस एरिया से वरुणा निकली है वहीं से इसका भी फॉर्मेशन ओरिजिन होगा, लेकिन भले ही अंदर अंदर है तो उस चीज को, पूरे चीज को समझना होगा। तो लेकिन शादी जहाँ तक ये पौराणिक या पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, अस्सी भागीरथी के वो हो सकते हैं, लेकिन एक उल्लेख मिला है कि माँ दुर्गा ने जब शुंभ निशुंभ का वो किया, मारा, तो अस्सी में तलवार होता है, तो वो तलवार आके यहाँ बनारस में गिरी थी, तो अस्सी नदी का। हाँ नहीं ठीक है, ये तो पूरे चीज को समझना है, और मुख्यतः इस एरिया की सभ्यता को समझना है कि यहाँ पर आदमी कब से आया, कब कैसे विकसित हुई, और वो किस पर निर्भर, खेती पर निर्भर थे या जंगल पर, क्योंकि ये जंगल वाला एरिया था, और इसमें जो पिंडारी वाला जो चीज है वो भी इसी में समझ में आता है कि है जो। और वेद विभाग और संस्कृत विभाग जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, वहाँ पर इस चीज के बारे में थोड़ा अध्ययन भी करना होगा, एक लोगों को जोड़ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
कानून बनाना होगा। बिल्कुल सही। विद्या धर्म संस्थान जो बीएचयू में है, जी पुराने इतिहास के भाग हैं यहाँ, जी जी तो इनसे इनकी ओरिजिन का पता चल जाएगा और इनकी नदी के कहाँ से निकली है और क्या उसका रूट रहा है और उसके किनारे किस तरह की सभ्यताएं विकसित हुई, ये तो मुझे लगता है पुराण और वेद और बाद के जो ये पौराणिक ग्रंथ हैं ये देंगे। यहाँ बनारस में के विद्वान लोग हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और संस्कृत यूनिवर्सिटी है हमारी, यहाँ पर इसके विद्वान लोग हैं, तो वो वहाँ पे हम लोग इसका पूरा रूट तो निकाल लेंगे और कुछ न कुछ रूट ऑलरेडी तय है, लोगों ने पहले से काम किया है। अभी आरिफ साहब एक ज्योग्राफी विभाग में एक रिसर्च स्कॉलर है, प्रोफेसर पीवी राणा सिंह से बात हो रही थी और 4-5 दिन न्यूज में भी था, तो उन्होंने टोटल पास 180 किलोमीटर, साहब अभी बता रहे थे कि जहाँ से वरुणा निकली है वहीं से हमको लगता है कि इसकी भी ओरिजिन है। तो जीआईएस और काफी माने आधुनिक इंस्ट्रूमेंट के सहयोग से उसने नदी का निशान तो कहीं नहीं मिलता है, लेकिन इसकी ओरिजिन का जगह और बीच बीच में सरोवर तालाब हैं जिसमें अंडरग्राउंड रिसोर्स से पानी आता है, तो उसका इस तरह का एक रिसेंट रिपोर्ट है। उनको भी अभी आज हमने शाम को ग्रुप में डाला हुआ है, तो उसका पेपर करेंट साइंस जो ये बंगलोर से निकलता है। हाँ, वो लड़का बहुत काम कर रहा है। जी जी जी, आपने देखा होगा अखबार में 3-4 दिन में निकला भी था। अभी भी राणा सिंह से मेरी बात हुई थी, आज सवेरे भी उनसे बात हुई थी, बात होती रहती है इस मामले में। हाँ, तो इसमें आरिफ जी, इसमें हमको एक और सोर्स समझ में आ रहा है कि गौतम बुद्ध भी वहां आए और सारनाथ में उस समय की क्या स्थिति थी पूरे इस क्षेत्र की, और उनको उनके मतलब जो उस ग्रंथ होंगे उन बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख होगा और पूरे 80 और वरुणा का उसमें कुछ मिलना चाहिए। और ये तो तय है कि हम लोग अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हमको अगर परिवार से तुलना करें हम लोग, तो हम सस्टेनेबल हम अपने परिवार के पिताजी के या पेरेंट्स के बच्चे अगर आपस में कंपटीशन करें और हम पिताजी को उस तरह से एक्सप्लॉइट करने लगे तो हम परिवार जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरह से नदी भी जो है, नदी और या नेचर वो हमारा हम उसके एक पार्ट हैं, न कि हम अपने को उससे अलग समझने लगे। तो वो हमारा जो पूरा सिस्टम है, पारिवारिक सिस्टम जैसे विच्छिन्न हो जाता है, उसी तरह से हमारा नेचर जो है वो ये विच्छिन्न हो जाएगा। तो हमको क्या है कि कंपटीशन नहीं करके हमको कंपेनियनशिप का जरूरत होता है और एक दूसरे को समझने का जरूरत होता है कि हमारे हम जो कुछ करेंगे तो उससे इस परिवार को नुकसान तो नहीं होगा और हम इस परिवार को आगे कैसे बढ़ा सकें, हम कंट्रीब्यूट कैसे करें। तो उसी तरह से नेचर का नदी पहले तो हमको लग रहा है कि नीर का निर्माण हुआ होगा, जब भी सब मतलब पृथ्वी का निर्माण के साथ नीर के निर्माण का नीर और उसी से नदी बनी, और तभी फिर आगे नीड़ जो बोलते हैं हम, जो घोंसला का निर्माण, उसमें अलग तरह से जीव और हमारे घर और इस सब का निर्माण हुआ होगा। तो इसका सस्टेनेबिलिटी हमको कॉमर्शियल मतलब कंपटीशन जब भी होगा तो कॉमर्शियलाइजेशन होगा। तो नदियों का कॉमर्शियलाइजेशन शुरू में नहीं हुआ है, जरूर कंपेनियनशिप रहा है, तभी लोग नदी सभ्यता डेवलप कर पाई है। और उस चीज सबको भी समझना होगा हमको इसके परिप्रेक्ष्य में। असल में झा साहब जैसा आपने बताया, अगर इकोलॉजिकल सिस्टम को देखें, इकोलॉजी, तो उसमें हर चीजें जैसे आपने बताया, पानी, नदियां और हम लोग एक पारिवारिक संबंध है।
इकोलॉजिकल सिस्टम में तो यही होता है, हर तत्व जितने हैं इंक्लूडिंग पानी, एयर, हम लोग माने लिविंग बीइंग, सबका एक संबंध होता है, आपसी संबंध। और इस संबंध को पुनर्जीवित करना ही, अब जैसे आज अस्सी नदी की जो हालत है, इसके लिए हम लोग ये काम करना चाहते हैं कि रिवाइवल, पुनर्जीवित करने का। पुनर्जीवित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? समय के बदलते क्रम के अनुसार हम लोगों ने नदियों को इस तरह से अपने प्रयोग में ले आए हैं कि नदियां अपने वास्तविक रूप को छोड़ के विलुप्त हो गई। वो पूरा दोहन कर लिया हमने। वही कमर्शियलाइजेशन, हमारा कमर्शियलाइजेशन जो है, कंपेनियनशिप नहीं करके हम उसको अपना नहीं समझ करके उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करें उसमें लग गए हैं। और अभी वही चीज गंगा तक को करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आज देखिए साहब, जैसे सुबह आप कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे थे, तो नदी में अपना तत्व तो है ही नहीं। थोड़ा बहुत जो पानी DRW के पास एक तालाब है, उससे जो पानी आता है, और उससे अधिक इतना सीवेज और चीजें, मैंने प्रेजेंट की मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहिए। तो इसमें इंक्रोचमेंट और सीवेज, इंक्रोचमेंट मान लीजिए नदी का, इसके पूरे कैचमेंट एरिया का कहीं आपको, जैसे हम लोग की इस एजेंडा में एक मुख्य चीज है कि इसका क्या जलग्राही क्षेत्र कैचमेंट एरिया है। तो कैचमेंट एरिया अगर हम लोग डिफाइन करें तो आज स्थिति नहीं है अस्सी नदी की कि हम कैचमेंट एरिया डिफाइन करें। कहीं कहीं नदी को सीमेंटेड पाइप में हमने उसको इकट्ठा कर दिए हैं लोग। तो पहली चीज कि जिस तरह से इसका दोहन इस प्रेजेंट सिनेरियो में, आज उल्लेख में भी इसका उल्लेख नाला की तरह है। तो नाला क्या रहा है, नदियों की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। आज इस नदी का अपना स्वरूप ही नहीं रहा। ये कैरी क्या कर रही है? सीवेज, और जो भी फ्लो है इसमें सीवेज और भी अन्य चीजों की वजह से है। तो हमारा कहने का ये मतलब कि जब तक आज मैंने शुरू से आज तक हम लोग नदियों को नदी नहीं समझे, हालांकि पूरी सभ्यता, हम लोगों का विकास, हम लोगों का जो आधुनिक स्वरूप है, आज नदियों के ही वजह से है। और नदियों के किनारे ही है। जी जी, सभ्यता पूरी नदियों के किनारे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम लोगों को ये समझना होगा कि ऐतिहासिक रूप से वहाँ आबादी कैसे कैसे बढ़ी और अभी कितनी आबादी है, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है, और उस आवश्यकताओं को हम वहां पर कितना मीट कर सकते हैं। जैसे उनका पानी का रिक्वायरमेंट है, वहां पर पानी तो सिर्फ नदी नहीं है, हमको वर्षा से पानी आता है और वहां पर सफिशिएंट वर्षा होती है। और उस पानी को अगर हम प्रॉपरली रिसाइकिल कर पाए, वर्षा के पानी को, उसको हम कहाँ कैसे स्टोर करें, कैसे उसको हम रिसाइकिल करें और हम अपने लिए भी यूज करें, और नदी में धीरे धीरे पानी जो हमारे ग्राउंड वाटर में बढ़ता जाए, जो नदी भी जिस तरह से उसके पास था पहले वैसा हो जाए, और हम गंदा पानी उसमें न छोड़े, उसको भी हम रिसाइकिल करें। इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, और उसके लिए जितनी आबादी वहाँ है अभी, और फ्यूचर में हम उस आबादी को कैसे मतलब कैटर कर सकते हैं। कोई भी एरिया को सस्टेनेबल मेरे हिसाब से बनाने के लिए जरूरी है कि उसका मैक्सिमम चीज उस क्षेत्र से ही, उसको उसके जीने का आधार उसी क्षेत्र से अवेलेबल हो, उसके भोजन का, उसके वर्षा में जो से पानी हो रहा है उससे कुछ बचाने का, अपना उपयोग के बाद बचाने का, भोजन के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो उस एरिया में उपज हो सकता है। तो बाहर पर डिपेंडेंट कोई भी क्षेत्र, कोई भी नदी तभी तक सस्टेनेबल होगा जब उस क्षेत्र का सब कुछ उस क्षेत्र से पॉसिबल हो और बहुत थोड़ा ही चीज बाहर से आए। तो हम इस चीज के रूप में उस चीज को अध्ययन करने का कोशिश करेंगे कि पास्ट में कैसा था, पास्ट में वहां पर जरूरत पड़ता था क्या, और अभी की आवश्यकता वहां पर कैसे है, कितनी आबादी को वो सस्टेन कर सकता है, और कितनी आबादी उस नदी को सुरक्षित अपना पारिवारिक रूप से संभालते हुए नदी के साथ जीवन अपने को नदी को भी जीवंत कर सके और खुद भी रह सके। हम ये नहीं मानते हैं
कि अभी का हमारा जो विज्ञान है, जितना दूर तक हम डेवलप किए हैं, वो बिल्कुल ही अक्षम है कि जो आबादी अभी वहां है उसको नहीं संभाल पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम पूरे वैज्ञानिकता से बढ़ेंगे तो शायद अभी भी जो आबादी है या उससे अधिक भी आबादी को उस क्षेत्र में हम अच्छे से एकोमोडेट कर सकते हैं और वो नदी जो है वो भी सस्टेन कर सकती है। इस चीज के बारे में हम लोगों को पहले पास्ट फिर प्रेजेंट और तब इस फ्यूचर को कि हम फ्यूचर अभी प्रेजेंट में हम उसको सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं और फ्यूचर कैसे कर सकते हैं, ये सब अलग अलग विधा है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा अब आरिफ साहब इसके पास के बारे में ज्यादा जानकारी हम लोगों को देंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं जब भी वो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उसी में सब कुछ आएगा, उसी में जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, उसी में बोटेनिकल फॉर्मेशन, बोटेनिकल अवेलेबिलिटी, उसी से मतलब हाँ मतलब सब चीज का धीरे धीरे हम लोगों को, और हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में भी बढ़ें कि सबको इस चीज को ये करें कि वो अपने चीज को पढ़ेंगे तब ना आरिफ जी को भी उसमें से डिटेल मिलेगा। तो जैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे लॉकडाउन जरा सा खत्म हो, कुछ यूनिवर्सिटी खुलने शुरू ही है डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि 30 तक इस बात सब ठीक हो जाना चाहिए, जाना शुरू हो जाना चाहिए। तो मैं और लोगों की एक ग्रुप टीम बनाता हूँ और हम लोग, मुझे लगता है पहले हम लोग मैपिंग करें पूरी उसके, तो ये भी बहुत जरूरी है। और ये हमारे जो धर्मशास्त्र है, धर्मग्रंथ है, शुरू में ये मैपिंग मिल जाएगी, बहुत मुश्किल काम नहीं है, कुछ लोगों ने किया है। हाँ बिल्कुल। और उसको जरा सा साइंटिफिक स्तर पर उसको तोड़ लेने की जरूरत होगी, तो वो उसका रूट पूरा अगर पता चल जाएगा हमें ठीक ठाक ढंग से और तय कर लेंगे, तो वो पूरा विकास और आसपास की आबादी कैसे डेवलप हुए, ये सब चीजें हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और जो यहाँ का जमीन का अभिलेखागार और वो सब चीज होता है, उससे भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। और जो यहाँ के मंदिर और जो पुराना मंदिर सब है, उन लोग उसका इतिहास से भी आपको सब कुछ बहुत कुछ मिलना चाहिए। महंत जी का जो बिल्कुल, ये जो बंदोबस्त हुए थे अंग्रेजों के जमाने में, तो वहाँ पे देखने की जरूरत पड़ेगी कि क्या उसका अस्तित्व तो कितना बरकरार था। उन्होंने मैपिंग बहुत अच्छी की है, उस दौर तक क्या था, क्योंकि बहुत बाद में ये सब हुआ है, कुछ बचा था उसका अस्तित्व। तो मेरे देखते देखते वो नाला होगी मेरे सामने काफी ठीक ठाक थी जब मैं बनारस आया। नहीं आरिफ साहब, आपको याद होगा, आप तो बहुत दिन से हैं बनारस में, सुंदरपुर में भी इवन नदी और बीच में ब्रिज इंक्लेव हो रहा है, तो वहाँ पर था। हाँ, वो लेकिन ये जो कॉलोनियां डेवलप हुई और कॉलोनाइजर ये हुए, तो बीच में तो एकदम गायब हो गई, नदी दिखती नहीं है कहीं। देखिए 73 में तो हम उसको नदी के रूप में देखे हैं, 73 में। हाँ, और गंगा में तो खैर बिल्कुल ही गंदगी कहीं से भी जाने का नहीं ये होता था। जो पानी नाले का पानी में गंदगी तो नहीं होती थी, टॉयलेट का पानी तो लोग सोच भी नहीं पाते थे कि नाले में जाएगा, और टॉयलेट उस समय में मैनुअल स्कैवेंजिंग था। तो अभी उस सब चीज को हम लोग कैसे करेंगे, वो एक अलग चीज है, उसको हम लोग बढ़ेंगे कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं तो ऑटोमेटिक स्कैवेंजिंग, और वो स्कैवेंजिंग का कैसे करेंगे, वो केमिकल इंजीनियरिंग और अलग डिपार्टमेंट के साथ। तो मतलब मैनेजमेंट प्लान को तो हम लोग आगे लाएंगे, लेकिन आप ऐतिहासिक रूप से चीज को समझें, और हम लोग फिर आबादी और किस आबादी को कैटर कर सकता है उसके लिए डिफरेंट अलग अलग तरह का टूल्स हम लोग यूटिलाइज करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट को साथ लेकर के, और उसको एक सब लोग मिल करके लेकिन हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होते हुए अभी तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो मेनली हम लोग कोशिश करेंगे, इसको सस्टेनेबिलिटी का चीज है, तो सबसे अधिक मतलब हमारा सस्टेनेबिलिटी वाला जो डिपार्टमेंट है, वहाँ हम लोग उनके जो उनसे सबसे अधिक हमको उम्मीद लगाना पड़ेगा और उनको साथ लेना पड़ेगा, और बाकी सब अलग अलग तो है ही। इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक प्रोफेसर कविता शाह हैं, तो उन्होंने ये श्योर किया है कि मैं इसका फ्यूचर का प्लान
कि कैसे ये नदी फिर अपने असली स्वरूप में आ जाए, हम्म, इसका वो पूरा प्लान बना रही हैं। हम्म, और हो सकता है इसमें जो अगला हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं हम्म। तो वो भी उसमें वो पार्टिसिपेट भी करेंगी। हालांकि अभी तक अपने नंबर नहीं भेज पाई हैं। ठीक है, वो हो जाएगा। एक दिन बाद नहीं, वो तो ऐड हो सकता है बाद में हाँ। भी। तो हमारा ये कहने का मतलब कि कैसे सस्टेनेबिलिटी, झा जी आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। नहीं नहीं, हम जानते नहीं हैं, हम उसमें समझने का प्रयास करते हैं, सबके ज्ञान को एसिमुलेट करने का, कोऑर्डिनेट करने का। नहीं, आज हमारे यहाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि जो सीवेज जाता है उसको हम लोग एट सोर्स, इंडिविजुअल लेवल पर, कॉलोनी लेवल पर हम लोग उसको ऐसा वो करके और जो डिस्चार्ज करेंगे वो एकदम शुद्ध पानी होगा। हाँ, तो हम इसमें देखिए, हम उस तरह से प्लान करेंगे कि इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, फिर बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, मिड टर्म में क्या किया जा सकता है, और फिर अल्टीमेटली हमको किस किस डायरेक्शन में जाना है। तो हम लोग डायरेक्शंस को उस तरह से उनके साथ मिल करके करेंगे, सस्टेनेबल डिपार्टमेंट के साथ। तो ये प्लान जो है एक बार का चीज नहीं होता, और पहले हम लोग बढ़ते हुए आगे अल्टीमेटली कैसे ये करेंगे, तो पूरा चीज को ये करना होगा। तो उसमें वो सभी चीज में कई स्टेप में करने की जरूरत है। हाँ, कम से कम इसको नहीं, ठीक रहा, अच्छा है। और तो इसको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल सिचुएशन और सभ्यता के विकास की स्थितियों को समझ लिया जाए, इसके किनारे किस तरह का, ये जरूरी है। और हम लोग वहां तक प्लान करके देंगे कि आगे यहाँ ये किस किस हद तक आबादी या किस चीज को सस्टेन कर सकता है। अभी जो एग्रीकल्चर का जो चेंजेज हुआ है, हम जैसे हमको समझ में आ रहा है कि अगर एक फ्लैट में अगर हम अपना मशरूम अगर उपजाने लगे तो हम सिर्फ उसी में जिंदगी हमारा चल सकता है। तो हमारी आवश्यकता जो है ना, वो अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना, और उस तरह की चीज सबको के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आवश्यकता हमारी क्या है। हमारी आवश्यकता नौकरी है क्या, हमारी आवश्यकता एक इंडस्ट्री में काम करना जरूरी है क्या, या हमारी आवश्यकता भोजन वस्त्र आवास है और शिक्षा है, और हम ज्ञान लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, इस सब चीज को भी हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। और उसको हम कैसे अचीव करें, ना कि हम देखिए उसी जमीन में अगर हम छोड़ दें पूरे, मतलब जो सुंदरपुर पूरे इसका जो क्षेत्र है उसमें हार्डली 2 मिलियन टन या 3 मिलियन टन का स्टील प्लांट बनेगा, और वो 2-3 मिलियन का स्टील प्लांट का को कॉस्टिंग करेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। और उसी एरिया में अगर हम दूसरे ढंग से किस किस तरह से जीने का ये हो सकता है, तो जीने का आधार क्या है, सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए अब इतना ही छोड़ दें। नहीं, छोड़ के दीजिए, लेकिन ये जो चीजें आप कह रहे हैं इसके लिए पब्लिक में जाना हम लोगों को, एक एक आदमी को, बहुत लोग जैसे देखिए अब अनएजुकेटेड सोसाइटी भी नहीं रही, स्पेशली बनारस की जनता, और जो इलाइट कॉलोनीज हैं 2-3, जिसमें बनारस के स्पेशली BHU के अच्छे अच्छे लोग, प्रोफेसर, ये सब लोग ये वाली इंटेलेक्चुअल जी कम्युनिटी है। और जो झा साहब ने मशरूम कहा या इस तरह की और भी चीजें हैं कि पूरे अपने घर के हाउस होल्ड वेस्ट को रिसाइकिल करके सब खत्म कर सकते हैं। लेकिन आधुनिकता के दौर में हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि उससे, और जैसे आज फ्लश सिस्टम है, टॉयलेट सिस्टम है, तो उससे आगे हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए तो जब तक हम रिसाइकल प्रोग्राम भी चलाने की जरूरत है, जिसमें लोगों को कन्विंस करना, उनका माइंड सेट बदलना, ये सब भी इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है, और इसके लिए हमको सिस्टम क्रिएट करना होगा। हम ये नहीं उम्मीद करते हैं कि हम सब कुछ हम ही कर देंगे। एक सिस्टम क्रिएट करना होगा जो आगे रिसर्च, अलग अलग फील्ड का रिसर्च भी करेगा। जो हम लोग कुछ हद तक रिसर्च के डायरेक्शन को अभी हम इंगित कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आप जाइए, इस तरह से सोचिए। लेकिन आगे जैसे जैसे रिसर्च होगा, लोगों के जीवन को, हम लोगों को जीवन को आसान बनाना है,
न कि हम लोग अभी पूरे जो सभ्यता है वो बिजनेस को इजी बनाने में लगा हुआ है, ईज ऑफ बिजनेस को महसूस करता है, न कि ईज ऑफ लाइफ को। तो इस फिलॉसफी को तो हम फिलॉसफी में जो विद्वान लोग हैं उनको भी हमको शरीक करना है बीएचयू का कि हमको ईज ऑफ लाइफ चाहिए या ईज ऑफ बिजनेस चाहिए। तो अलग अलग चीज को हम लोग सब लोगों को जोड़ेंगे। अब एक छोटा उदाहरण दूं, आज से 10 साल पहले जब ये साकेत नगर से नदी निकलती थी तो वहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था जहाँ पर 80 नाला और एक पुल बनी हुई है। अब तो नई पुल बन गई। वहाँ पर काफी सब्जियां होती थी उस किनारे पूरा हैं, किनारे और काफी जमीन था वहाँ खाली पड़ा रहा था। जी, खाली पड़ा रहता था। जमीन की यह हालत है कि वहाँ अच्छे अच्छे होटल खुल गए। प्रभावशाली लोगों ने उसको, हालांकि वो नदी क्षेत्र की जमीन है वो कानून के अनुसार और किसी को नहीं मिल सकता है, लेकिन लोकल अथॉरिटी से सांठगांठ बैठा के और जिसको हम भू माफिया कहते हैं या कह सकते हैं, उन लोगों ने वहाँ पर होटल खोल दिए, जमीन बना दिए। तो वही जो झा साहब बता रहे थे कि बिजनेस वाली लाइफ चाहिए या एक्चुअल लाइफ चाहिए, तो इसके लिए भी प्रयास हम लोगों को करना होगा। और उस डायरेक्शन में राय साहब हम लोगों को कोविड जो है ना वो स्वतः उस लाइन के तरफ सोचने को पूरे सभ्यता को बाधित किया, मजबूर किया है। हाँ, तो ये इस चीज को, और हमारे पास में अभी जो ये कम्युनिकेशन टूल्स अवेलेबल है, इसके चलते हम दूर दूर से रह करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो साथ में हर एक बार हम जैसे मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूर दूर में हैं और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जो चीज सब मिला है, जो हमारा साइंटिफिक टूल्स है उसका उपयोग करते हुए हमको डिसेंट्रलाइजेशन और नदी घाटी सभ्यता का विकास जो पहले था उसको सस्टेनेबल बनाना, इसके बारे में हमको पूरे विज्ञान को, अभी के विज्ञान को और होने वाले फ्यूचर के विज्ञान को समझते हुए डायरेक्शन देना है, समझना है चीज को और करना है। और 80 को हमको एक्सपेरिमेंटल करना है और उसी के साथ साथ हम दूसरे जगह पर, जैसे आज हम लोग समझने का प्रयास किए, जब गंगा नदी को समझने का प्रयास किए तो लगा कि वेस्टर्न यूपी की नदियां कहाँ गई, दिल्ली की नदियां कहाँ गई। तो ये सब चीज को भी जब हम यहाँ करेंगे तो हमको आभास होगा कि हम, और अभी जो हो रहा था कि हम गंगा को बचा लेंगे। गंगा अकेले नदी नहीं है, गंगा जो है वो नदियों की नदी है। तो अभी आज ही जैसे जिस तरह से हमको सुनने को मिला कि गंगा का क्या मतलब होता है, तो गंग मतलब वो गंग धातु से बना हुआ है, और वो मतलब फ्लो उसका मतलब होता है कि बहते हुए चली जा रही है। तो वो सिर्फ भागीरथी नदी नहीं है, वो सब जगह की सब कुछ जुड़ती हुई बढ़ती हुई चली जा रही थी। तमाम नदियों से को जोड़ते हुए तमाम नदियां उससे जुड़ती हुई मिलती चली जाती हैं। तो उसी को गंगा बोल रहे हैं। तो कि फ्लो तो ये सब चीज को हमको मतलब एक समग्रता में हम लोगों को इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना होगा सब चीज को, कि हमारा जीवन आसान हो, न कि हम जीवन को हम बिजनेस को आसान बनाए। तो इसको इस फिलॉसफी को लेते हुए हम अपनी पुरानी नदियों को खोजेंगे, जो लॉस्ट रिवर्स है उसको भी ढूंढना होगा और सबको मिला करके, और हमको उस चीज को हम 80 में हम लोग चाह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल हम लोग इस चीज को देखें, समझें और बाकी जगह भी करें। तो आरिफ जी, आपसे शुरू होना है और आप शुरू करें। हम लोग आज के लिए हम लोग यहीं पर ये कर रहे हैं, और जो लॉकडाउन है उसका उस समय का भी सदुपयोग कीजिए, लोगों से जुड़ने का, फोन से और इस तरह से जोड़ने का, और हम लोगों से और बाकी लोगों से जो भी सहयोग का जरूरत होगा, सब लोग ग्रुप में काफी लोग हैं, हम लोग इसको ग्रुप में डालेंगे और ग्रुप में लोग जो है जो जिस फील्ड के हैं और जिसको जोड़ सकते हैं वो जोड़ने का प्रयास करेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं कल से इन लोगों को जोड़ता हूँ। आज राणा पीपी सिंह से मेरी बात हुई है इस पर, और वो और कुछ लोगों को लेके मैं
काम शुरू कर देता हूँ लोगों के साथ। राणा पीवी सिंह ने काफी सहयोग का आपने नंबर दिया तो हमने उनसे बात भी किया, तो काफी सहयोग की बात वो कर रहे थे कि डॉक्टर साहब जितना सहयोग होगा हम करेंगे। नहीं वो करेंगे, वो सहयोगी है। और वो जो मिश्रा चिकित्सालय है इस समय लॉकडाउन की वजह से गांव में रुका हुआ है, तो जैसे ही 31 तारीख के बाद वो सब चीजें ईज हो जाएंगी तो आएगा, तो उसकी वजह से भी काफी हम लोगों को क्या कैसे ओरिजिन है। ईद बाद हम एक छोटी मीट इन लोगों के साथ कर लेंगे, उम्मीद है कि ठीक ठाक रहेगा, तो 4-5 लोग तो हम बैठ ही सकते हैं BHU में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनका स्पेशल स्कॉलर को भी बुला लेंगे और ये राणा साहब रहेंगे ही, और जो लोगों को अभी हम पेश आउट कर लेते हैं इंस्पेक्टर तो मैं इनसे कहूँगा। आरिफ साहब आप जानते होंगे प्रोफेसर यादव भी हैं एक वहाँ पर। जी 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 जी, उनका नंबर तो हमको मिला लेकिन वो शायद गलत नंबर या नंबर चेंज हो गया। नंबर ले लेता हूँ। वहाँ हमारे एक दोस्त है दीपायन। अच्छा, उनका मिला नंबर, मुझे लगता है पुराना नंबर है जो चेंज हो गया, क्योंकि हम हाँ मैं बात करके मैं आपको नंबर दूंगा। और ये अभी मत्स्यरानंद जी से भी शायद आपको काफी कुछ मदद मिलेगा इस सब में, मंदिरों का अभिलेख और ये सब चीज, और महंत जी से भी मिलेगा, तो ये सब चीज आप ट्राई कीजिए। नहीं, आपकी जो मीटिंग होगी हम करेंगे, बैठेंगे तो अभी मत्स्यरानंद के यहाँ ही बैठ जाएंगे। वो भी हमारे, उनसे भी हमारी अच्छी मित्रता है और मान जी से तो है ही है, मान लीजिए। तो मैं अभी मत्स्यरानंद जी से और मान जी से दोनों लोगों से बात कर लूंगा। पीवी राणा सिंह जी रहेंगे और उनका रिसर्च स्कॉलर, एक दो संस्कृत विद्या संस्थान 72 से आज तक गंगा का तो है ही, 80 का भी उनके पास रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज बता रहे थे कि आप लोग आइए तो मैं पूरा डेटाबेस आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वाटर क्वालिटी और उसका क्या पोल्यूशन का स्टेटस है, इसका रिकॉर्ड महंत जी के पास खुद है। अलग अलग क्षेत्र का जो रिसर्च स्कॉलर है उन लोगों को भी जोड़िए, और है ना, उनको उनके लिए सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट मैटर और ये सब चीज हम लोग मतलब ये करेंगे कि इसमें जुड़े और वो सब रिसर्च के लिए आगे बढ़े, तो इस सब चीज में सब लोगों को हेल्प कीजिए। नहीं, मैं बात करता हूँ इन लोगों से, सबसे बात करता हूँ और एक बार बैठते हैं हम लोग, इस बात जरूर बैठते हैं। आप दोनों लोगों को मैं 3 वो प्रोग्राम लिख के भेजूंगा, जूम और वेबएक्स और एक गूगल में हैंग आउट। ये तो सबको करना होगा ना, आप लोग कर लेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। चलिए उस चीज को हम लोग फिर बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की जरूरत है, आप लोग भी इंडिविजुअल लेवल पर अगर रिकॉर्ड करना चाहें तो उसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत होगी। मोबाइल से वो रिकॉर्ड नहीं होगा वीडियो वाला। ठीक जी जी। ऑडियो तो अभी हम लोग तीनों लोग शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ और मेरा भी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, अब आप दोनों लोग निकल लिए, वो तो हो गया। हाँ नहीं ठीक है। रिकॉर्ड में नहीं, हमारा ये कहने का मतलब कि जैसे इंडिविजुअल भी आप लोग करना चाहें तो सब लोग कर सकते हैं। जी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आरिफ साहब अगले हफ्ते होगी, अभी डेट नहीं हम लोग किए हैं उसको, आप नहीं, उससे पहले हम लोग आपस में फिर 1-2 बार और भी कर लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कर लेंगे, हाँ ट्राई कर लेंगे, 3-4 आदमी का तो सुविधा होगी उसमें। करना होगा कि ये प्रोग्राम आप लोग अपने इसमें मोबाइल में भी लोड कर सकते हैं, तो मोबाइल से वो लोग कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं लिख के आप लोगों को भेजूंगा दोनों। ठीक है। और इसको भी हम लोग इसमें डालेंगे, और इसमें हम देखते हैं कि आगे मतलब आगे पीछे कुछ और भी अगर विवेकानंद जी करना चाहते हैं तो वो भी करवा देंगे। विवेकानंद जी अभी का आपने देखा नहीं, पोस्ट आया है ग्रुप में, काफी लंबी चौड़ी 2 पोस्ट लिखे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमको इनिशिएट करने का मौका दिया जाए वीडियो। हाँ तो इसमें जो हम लोग बोले हैं वो उनको भेज दे रहे हैं। और इसमें इनिशिएशन वो अपना GD अग्रवाल और उस सब चीज को लिखेंगे, बोलेंगे, और लास्ट में जो कंक्लूजन वो डालेंगे, और उसको हम लोग GD अग्रवाल निगमानंद। हाँ तो उसको फिर साइट उस पर हम लोग डालेंगे, इसमें तो सुविधाजनक लगेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मातृ सदन वाले उस पर भी चला जाएगा। हाँ वहाँ भी तो पता चले।
ठीक है, अभी रखा जाए। किया जाए फिर। ठीक ठीक, हाँ, अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक्स। ओके, थैंक यू। Dear esteemed members, as you all listen to a very engrossing conversation, discussion, and deliberation on Assi River, from these three stalwarts. One, the first was Dr. U.N. Rai, noted scientist. Sri B.K. Jha, engineer from Mekong, a very a thinker par excellence, and then we have Professor Arif, a professor of Indian Institute of Technology. They all have been discussing and deliberating on what the Assi River is all about. How over a period of time, which was a very very gushing, a flowing river, has come to stagnate, and it has reduced to almost a Nalla like. So there once upon a time it had overall width and length of almost 80 kilometers, and you can well appreciate that over a period of time how it has been reduced to a mere nalla, that even people without familiar with its glorious antecedent glorious history, they might never know that it was once upon a time it was such a great river that that provided water to the inhabitants of Banaras. Now the most important fact is this, that Banaras, where this river basically was flowing and originated flowing over a period of time, where you all know about the glory of Banaras, about its own background, that Lord Buddha, after attaining enlightenment in Gaya, first time when he delivered his discourse, that was in Sarnath, which is adjacent to Banaras, or it is a part of Banaras. Thereafter great Adi Shankara, since millennium later, he also went to Banaras, and while while walking through a small lane, he heard somebody pronouncing just pronouncing some words from grammar. So great Sankara instantly he just wrote the beautiful stanzas, the memorable historical stanzas of Bhaj Govindam. So basically these two and another greats, many greats over a period of time had traveled to the great holy ancient city. So now these three honorable gentlemen discussed about its overall length of the city, about its inhabitants, that how many what was the overall magnitude, or you can say the numerical strength of the inhabitants that situated situated across the river, how river was providing water to them, what about the rainfall situation, how the water could get stored in the Assi river, and how she was able to fulfill the demands of the people there, what happened, what was the consequence of this particular river getting dried up. So all these varieties of issues were being discussed. But most importantly, I would like to say, or rather emphasize on this particular word, that we indeed what is required is of exhaustive research happening, is a sine qua non for getting into the bottom of the issue, getting into the core of the issue, and thinking in terms of resolving it. It requires a lot of exhaustive research. Most importantly, since this particular group has esteemed professors, all the technical expert people, definitely we are looking forward to not only successfully reviving this river and restoring it to its pristine glory, but subsequently we are looking forward to reviving almost most of the rivers of this great nation, the great Bharat Barsha. So let us begin. I was indeed privileged and glad to see the deluge of all talented people in this group, and therefore when Sri B.K. Jha and Professor Rai requested me to give some sort of introduction and to speak few things about this river, to sum up the discussions and deliberation of these three individuals, I took it as a bestowal of a divine privilege, and consequently today I am sitting on the bank just of Ganga, flowing just adjacent to that of Sanctum Sanctorum, the Matri Sadan, because there cannot be any movement anywhere in the country to revive whatsoever be the name of the river. The movement or any effort or any collective desire can never attain fruition or attain this objective unless the names of these great martyrs like Professor G.D. Agrawal, Dimbanandji, Atmodhananji, the crusade of Atmodhananji and Padmavati are not recalled or remembered with great reverence. No effort
can yield any tangible result. So let us have, I once again, compliment and wish all of you a tremendous success for this great effort to revive Assi River, and look forward to reviving Ganga. Thank you, all of you, the committed members.